नमस्कार, केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के प्राचीन किले में वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2022 का आयोजन। चिलुम एनजीओ के निदेशक रवि कुमार को बेंगलुरु मतदाता डेटा चोरी करने में गिरफ्तार किया गया। मंगलूर ऑटो ब्लास्ट, मुख्य संदिग्ध ने मैसूर में किराए पर कमरा लिया था। विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक कांग्रेस ने SC/ST रैलियों की योजना बनाई। छावला गैंगरेप हत्या, दोषियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी दिल्ली सरकार, LJ ने दी मंजूरी। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर शहर के प्राचीन किले में वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2022 मनाया जा रहा है। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक यह सप्ताह मनाया जा रहा है। किले में जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी शिल्पा M, ज्ञान सुधा शिक्षण संस्थान के मनीष लाखा ने ज्योति जलाकर इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर आर्कोलॉजिकल अधिकारी सहित अन्य मंच पर उपस्थित रहे। शहर के कई स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके साथ साथ शहर के गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया। संवाददाता मोहम्मद अजरुद्दीन और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಗಮಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಜೆ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತನ್ನ ಮೂಲ ತನ್ನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು ಸಹ ಮಾನವನಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನಾಂಗದನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಇದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಪಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು 95 ಸ್ಮಾರಕಗಳಿವೆ. ಬೀದರ್ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ 7 ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ CO ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರವರಾದಂತಹ ಶಿಲ್ಪಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಸಮುಖವಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಂಪಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ನಿತಿನ್ ದಾಸ್ ಅವರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೂ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ವೀಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹೆರಿಟೇಜ್ ವೀಕ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಬೀದರ್ನ ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 25ನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ ಈ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ವೀಕ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಏನು, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರೇನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ವೀಕ್, ಇದ್ರ ಥೀಮು ರೀಇಗ್ನೈಟಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಹೆರಿಟೇಜ್. The reason we have gathered here today to celebrate one of the widely observed event by the Archaeological Survey of India, the World Heritage Week. Actually, after the 1972 convention by the UNESCO, we started celebrating this World Heritage Week to impart awareness about our heritage, about our culture, and the need of preserving culture, to send message to. अब समाचार राज्य की। चिलुम शैक्षिक, सांस्कृतिक और ग्रामीण विकास
संस्थान के निदेशक कृष्णप्पा रवि कुमार को रविवार 20 नवंबर को बेंगलुरु पुलिस ने बड़े पैमाने पर मतदाता डेटा चोरी के संबंध में उनके खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किए जाने के 3 दिन बाद गिरफ्तार किया है। रवि कुमार उन लोगों में से एक है जिन्होंने 2013 में चिलुम को पंजीकृत किया था और मतदाता डेटा चोरी मामले के केंद्र में एनजीओ के पीछे मुख्य व्यक्ति हैं। एक जांच में मतदाता डेटा एकत्र करने के उनके एनजीओ के गुप्त अभियान का विवरण प्रकाशित होने के बाद से वह फरार था। 34 वर्षीय रवि कुमार बेंगलुरु ग्रामीण जिले के नीलमंगला के पास कलनायकना हल्ली के रहने वाले हैं। एक जांच में पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपों के सामने आने के बाद रवि कुमार कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में भाग गया। वह लगातार इधर उधर घूमता रहता था और उसका फोन स्विच ऑफ रहता था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसे रविवार शाम को गिरफ्तार किया गया जब वह बेंगलुरु के कब्बन पार्क के पास एक वकील से संपर्क कर रहा था। शनिवार के विस्फोट की जांच कर रहे मंगलूर से पुलिस की एक टीम जांच के हिस्से के रूप में मैसूर पहुंची और पाया कि संदिग्ध ने अपनी पहचान छिपाकर शहर के लोकनायक नगर में एक कमरा किराए पर लिया था और घर के मालिक को हुबली के मूल निवासी के रूप में पेश किया था। जांच दल के सूत्रों ने खुलासा किया कि संदिग्ध ने मैसूर में एक प्रेशर कुकर के अंदर कम तीव्रता के बम को भी इकट्ठा किया होगा और फिर उसे एक बस में मैंगलोर ले गया। रविवार की तड़के जांच शुरू करने वाली पुलिस ने घर के मालिक मोहन से पूछताछ की। जांच दल के एक सदस्य ने कहा कि कुमार ने संदिग्ध को अपनी जगह किराए पर दे दी थी। आरोपियों ने फर्जी पहचान पत्र दिए थे और यह पहचान की चोरी का एक स्पष्ट मामला है। उसने खुद को प्रेमराज के रूप में प्रच्छन्न किया था और एक लो प्रोफाइल बनाए रखा था, इसलिए किसी ने उस पर शक नहीं किया। विभिन्न सामाजिक समूहों को लामबंद करने की भाजपा की कोशिश के बाद कांग्रेस ने SC/ST समुदायों को एक साथ लाने के लिए अपने स्वयं के सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। यह योजना पूर्व उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर द्वारा संचालित की जा रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इन समुदायों के वोटों को मजबूत करने के उद्देश्य से SC/ST सम्मेलन आयोजित करने की अपनी योजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया, परमेश्वर, कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुव नारायण, पूर्व सांसद KH मुनियप्पा, पूर्व मंत्री HC महादेवप्पा और अन्य ने भाग लिया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी 2 कन्वेंशन आयोजित करना चाहती है, एक उत्तरी कर्नाटक में और दूसरी दक्षिण में। उत्तर में पार्टी कलबुर्गी या रायचूर पर विचार कर रही है, दक्षिण यह बेंगलुरु या मैसूर हो सकता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें
याद रखें, ज्ञानसुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञानसुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञानसुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छावला मर्डर केस के आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दे दी है। इस मामले में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल एसजी ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने को भी मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में पीड़िता के माता पिता से मुलाकात कर कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। रामपुर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लगा बड़ा झटका। 70 से 80 समर्थकों के साथ आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू ने सपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए। आजम खान से की बगावत। आजम खान के करीबी हैं फसाहत अली शानू। आजम खान की वजह से जेल भी गए थे शानू। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने, क्या कहेंगे? अब शामिल होने दीजिए, फिर सब कुछ कहूँगा जी। शामिल होने दीजिए। शामिल तो हो गए, आगाज तो हो गया। शामिल ही हूँ, अभी शामिल नहीं। मतलब ज्वाइन करने का आपने फैसला क्यों लिया, ये बताइए। अच्छा, फैसला भारतीय जनता पार्टी की फैसला लेने जा रहा हूँ, लिया नहीं है। हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखने के बाद में, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व को देखने के बाद में, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व को देखने के बाद में, और हमारे बहुत मेहनती प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी को नीतियों के कारण राष्ट्र सहयोग के लिए मैंने ये फैसला। ये उपचुनाव के टाइम ही कि आपको क्यों लगा कि मुझे भाजपा ज्वाइन करना चाहिए? राजनीतिक फैसला हमें चुनाव के समय लिया जाता तो ये बागी सुर आखिर पैदा क्यों हुए आपके? अब बात बगावत की नहीं है, हाँ। बात आस्था की। अब हर भारतीय, हर कमजोर भारतीय और हर अब्दुल, हाँ, राष्ट्र सहयोग में अपना पूरा सहयोग, राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा सहयोग। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ है, क्या नीति है इसकी? अभी हम हुए नहीं है, पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं, और हर मुसलमान को अभी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अब हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे, हम सीधे एक स्रोत में बहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर मोदी जी और योगी जी के साथ में हाथ मिला के आप एयरपोर्ट से घर जा रहे केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज करने के आरोप में नशे में धुत एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक इडुक्की जिले के मूल निवासी और एक कंटेनर लॉरी के चालक टीजो ने रविवार देर रात मुख्य न्यायाधीश की कार को नशे की हालत में रोका। चालक मुख्य न्यायाधीश पर चिल्लाकर उन्हें याद दिला रहा था कि यह तमिलनाडु नहीं बल्कि केरल है। घटना होने के तुरंत बाद मुख्य न्यायाधीश के पर्सनल सिक्योरिटी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टीजो को हिरासत में ले लिया है। टीजो के मकसद का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है, जबकि पुलिस ने उस पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब के नार्को टेस्ट की तैयारी चल रही है। आफ्ताब को लेकर पुलिस अंबेडकर अस्पताल पहुंची है। थोड़ी देर में आफ्ताब का अंबेडकर अस्पताल में प्री एनालिसिस टेस्ट होगा। आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने रोहिणी FSL से आधिकारिक तौर पर संपर्क किया। हालांकि आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट होने की संभावनाएं बेहद कम हैं। सूत्रों का कहना है कि नार्को टेस्ट से पहले आफ्ताब के कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट होने हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, जिसके चलते आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट होने की संभावनाएं न के बराबर हैं। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में भीषण भूकंप आया है। इस भूकंप की वजह से 20 लोगों की मौत की खबर है और 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। स्थानीय अधिकारी का हवाला देते हुए AFP ने ये जानकारी दी है। रेक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है। ये भूकंप इतना तेज था कि शहर की बड़ी बड़ी इमारतें हिल गईं और लोग अपने घर और ऑफिसों से बाहर की तरफ भागने लगे। इससे पहले शुक्रवार को भी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भूकंप आया था। रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई थी। इसकी गहराई 20 किलोमीटर जमीन के अंदर थी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। दृश्यम 2 ने तीसरे दिन की शानदार कमाई, हुआ 50 करोड़ का आंकड़ा पार। अब समाचार खेल जगत के।
डेविड वार्नर पर आजीवन प्रतिबंध का मामला, सजा खत्म कराने का मिल गया रास्ता। आखिर में समाचार बाजार की। बजट को लेकर आज से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुरू करेंगी बैठक। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के प्राचीन किले में वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2022 का आयोजन। चिलुम एनजीओ के निदेशक रवि कुमार को बेंगलुरु मतदाता डेटा चोरी करने में गिरफ्तार किया गया। मंगलोर ऑटो ब्लास्ट, मुख्य संदिग्ध ने मैसूर में किराए पर कमरा लिया था। विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक कांग्रेस ने SC/ST रैलियों की योजना बनाई। छावला गैंगरेप हत्या, दोषियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी दिल्ली सरकार, LJ ने दी मंजूरी। KP न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।